Um, Chandan Kumar. You are from which state? Bihar. Bihar. Very good. Which part of Bihar? Which district? It's Darbhanga. Darbhanga. Acha, acha. Darbhanga district is famous for what? Sir, it is famous for Mithila Makhana, from where it is mainly produced and sold to in our country or foreign country also. What is Mithila Makhana means? Mithila Makhana, sir, it is type of you can say uh, Millets mill, or grains. mill. It's come in the, sir, between them, because it is mainly in our culture. It is mainly used in precious festival like Chhath, where we used to as a fruit for the god. Or nowadays it is used also as a snacks, where they fried in with the salt or the sugar to What is the taste, name? because What is the name of that? makhana. Makhana. M Yes, A sir, makhana. M A. Ah, Makhana. It has got GI tag previous year. no, Makhana. I think it's a water lily food. Correct? Yes, sir. Yes, sir. It's a water lily food. Yes. Oh, नया वाला देख रहे हैं. First time I am seeing it. Oh, Okay, sir. so it is there more in Bihar. How do you have lot of? Do you have lot of water to have this? Sir, in Bihar, there are ponds. Small ponds are there are many small ponds where Mhm. they are grown. And in our district properly, there is a especially research center for makhana, where Mhm. they after getting mostly before also before getting GI tag, there were some kind of research going on to how to preserve and produce अरे more भाई and more. अरे भाई it is कुछ नहीं है जी. It is the lotus seeds. ये तो लोटस फ्लावर का सीड है बस. मखाना. लेकिन सर ये लोटस बनने से पहले ही उसको निकालना पड़ता है। अगर फूल बन जाएगा तो फिर मखाना उसमें प्रॉपरली नहीं बन पाता है। It is also referred to as fox nuts or lotus seeds. Anyhow, doesn't matter. Good. अच्छा अच्छा लोटस सीड. आई थिंक it is supposed to be very good for health. बहुत कुछ बोलता है ये उसका बारे में. यस सर, हाँ. में अर्थराइटिस में, शुगर में, इसमें खाते हैं लोग बहुत। Good for diabetic patients, bone strong, यस। weight loss. Very good, very good. ये अच्छा जी आपका यस। पिताजी क्या काम कर रहे हैं? मेरे पिताजी सर फार्मर हैं और वर्कर एज ए वर्कर भी काम करते हैं। अच्छा. क्यों जी दोनों करते हैं? सर, उतनी लैंड हमारे पास नहीं है, तो मेनली हम उतना ही ग्रो कर पाते हैं जितनी खेती हमारे जमीन है। बाकी टाइम वो फिर दूसरे वर्क करते हैं, जैसे असिस्टेंट का काम किसी शॉप पे, या खुद का कभी कुछ ओपन कर लिया, कोई अगर क्रॉस सेलिंग, कोई फेस्टिवल अगर हो रहा है तो उसमें कुछ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली हमारे उधर बिकते हैं, तो उसमें वो ओपन कर लेते हैं शॉप। वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा जी आपका हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? दो भाई हैं। आई हैव टू एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर. वो क्या कर रहे हैं वो लोग? मोस्टली दे आर आल्सो इन वर्किंग डिपार्टमेंट। वन हैज डन ITI, so they are he is working in mechanical, and other is running office. He is as a clerk. He had joined working. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आपने क्या पढ़ा है जी? मैंने सर बैचलर ऑफ साइंस विथ जूलॉजी ऑनर्स कब पास किया? 2016। कब बाद में कई जगह पर काम किए आपने? यस सर, 2016 के बाद मैंने आफ्टर टेकिंग माय डिग्रीज फ्रॉम माय कॉलेज, आई केम टू दिल्ली टू फाइंड अ सुटेबल जॉब, but after working 1.5 year, I couldn't find a suitable place in any most of the working offices where I work. Then after I started preparing for banking exams, and for my financial reach, I started teaching students of primary school like fifth to eighth class.
for fully independent from my family. But due कि, to in corona कि, time, कि, that yes sir. किधर टीच करते थे? घर में है ना आपका? घर में uh, और दिल्ली में? दिल्ली में ही मैं घर घर जाके बच्चों को पढ़ाता था। ओ, वेरी नाइस। अच्छा, दिल्ली में तो बहुत खर्चा ज्यादा है ना? आप कहाँ स्टे करते थे? आपको खर्चा मैं तो ज्यादा होगा, बैचलर अकोमोडेशन। sir in Delhi, a place like called Madanpur Khadar village, where the room rent are very cheap, like two to 3,000 you get. हम्म। अच्छा, अलोंग विथ मेनी अदर कैंडिडेट्स, और कैसे? 3-4 आदमी रहेगा ना क्या एक आपका साथ में? हेलो? Room there were some but hello. देर में मतलब बोलिए, कट कट होता है। या कहाँ Yes से sir. बोल रहे हैं आप? अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी मैं सर मदनपुर खादर विलेज में ही हूँ, न्यू दिल्ली। अच्छा अच्छा, ओहो, न्यू दिल्ली। ओह, यस सर। आप आप उधर ही रहते हैं? और आज भी, आजकल भी टीचिंग करते हैं नहीं करते? सर अभी भी टीचिंग कर रहा हूँ मैं, अभी वापस आफ्टर 2021 मिड सम पेरेंट्स कॉल मी, देन आई केम बैक टू दिल्ली। कोरोना के टाइम में मैं घर चला गया था, वहीं पे रह रहा था, वहीं पे कुछ काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैं दिल्ली आया, वहां पे मैंने वापस पढ़ाई स्टार्ट की और फिर से मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी। गुड, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट यू। हाउ मेनी थैंक किड्स यू सर। स्टडी विथ यू नाउ? आई एम मैं 6 चिल्ड्रंस को पढ़ा रहा हूँ, जिनकी गुड फैमिली अच्छी है तो वो थोड़ा अच्छा पैसा दे देते गुड। चिल्ड्रंस मत बोलना, चिल्ड्रन बोलना। चाइल्ड, हैं। ओके चिल्ड्रन। सर। वेरी यस गुड, सर वेरी यस। वेरी गुड, वेरी हैप्पी। थैंक अच्छा यू जी, सर। अभी ये आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के लिए आप क्यों इतना देरी से आ रहे हैं मेरे से? देरी से सर, मैं एक्चुअली एक तो टाइम का नहीं हो पा रहा था, उसके बाद सर मैं अभी बजट जो आई थी तो बजट का मैं कंटेंट अच्छे से बना रहा था। और कुछ मैंने आपके वीडियोस तब तक मैं आपको फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे। फिर मैंने सोचा फिर बजट एक बार अच्छे से बना लूं, फिर तब मैं आना चाहता था। गुड, वेरी गुड। यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट टू से that I would like to speak about budget. Now, can you please tell me about budget? Budget में क्या क्या पढ़ा है? सर बजट में स्टार्टिंग में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने फर्स्ट हमारा अमृत काल जो उन्होंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था लास्ट बजट में, उसको उन्होंने फिर से रिकॉल किया है। जो हमें 2047 2047 तक कंप्लीट करना है, हमारे 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे। उसके बाद उन्होंने 7 सप्तऋषि, जो 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे ग्रोथ, ऑल ओवर ग्रोथ को कंप्लीट करेगा, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उसके उसके जिसमें उन्होंने उसके बाद एमएसएमई रिवैम्प पे स्कीम लाया, जिसमें जो कोरोना के टाइम में जो बहुत सारे एमएसएमई फेल हो गए थे, तो उनको दोबारा रिवैम्प किया जाए, उनको कोलेटरल फ्री लोन देने के लिए वो क्रिएट किया है। उसके बाद मोस्टली जो इस बार का बजट में मेन हाईलाइट चेंज हुआ, वो हमारा टैक्स रिजीम वाला सिस्टम चेंज हुआ, जिसमें नया टैक्स रिजीम लाया गया है। उसमें सर उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि नए टैक्स रिजीम में यह है कि अगर आप 0 to 7 लाख एग्जैक्ट अगर आपका ईयरली है, तब तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इनकम 7 लाख से एनी कॉस्ट ऊपर होता है, तो फिर टैक्स रिजीम में चेंज आता है, जहां से 0 से 3 लाख आपको नील रहेगा, लेकिन 4 से फिर आपको 6 लाख के 5%, 6 से 9 लाख 10%, 10 से 12 इज 15%, एंड 15 लाख से अबव इट्स 20%। कंटिन्यू। यस। बस इतना ही पढ़ा है? नहीं सर, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे एक इस बार सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन स्टार्ट किया उन्होंने, जो हमें अगेन 2047 तक कंप्लीट करना है। हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है 2.1% ऑफ जीडीपी। उसके बाद एडुकेशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 2.9% ऑफ जीडीपी। हमारा जो कैपेक्स है
वो इंक्रीज किया गया है 10 लाख करोड़, जो कि 33% इंक्रीज है हमारा। उसके बाद चूंकि इस साल इंडिया जो है वो मिलेट्स ईयर इंडिया के कहने पे किया गया है, तो उन्होंने एक नया श्री अन्न करके एक लॉन्च किया है, जो हमारे मिलेट्स को और नए नए कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए, वो मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद से टाइप करके उन्होंने ये बोला है कि हम इसमें और इम्प्रोवाइज करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें सारे सेक्टर मिला के एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और डेयरी को, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 लाख करोड़ का दिया गया है। उसके बाद जो हम्म। पीएम आवास योजना है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है 79,000 करोड़ का दिया गया है। उसके हम्म। बाद पीएम कौशल योजना 4.0 लॉन्च किया गया है, जिसमें अब जो है वो जितने भी स्किल्स हम सिखाएंगे, वो अब हम एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल के स्किल्स सिखाएंगे, जैसे 3D, एआई, रोबोटिक्स, ताकि जो हमारे स्किल वर्कर्स हैं वो इंटरनेशनली जॉब एक्वायर कर सकें, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो। ये भी Super. है। उसके No, बाद this is sufficient. Sufficient. Regarding budget, sufficient. Good. Very good explanation. I'm very happy. अच्छा जी, थोड़ा रिजर्व बैंक का बारे में बताइए हमको। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो हम दो सिस्टम में समझ सकते हैं। एक ये बैंक ऑफ बैंक है, और ये बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई बैंक के रिलेटेड काम है तो वो आरबीआई को बोलेगी, और हमारे कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी कैन से द फादर ऑफ बैंक्स इन इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1 अप्रैल 1935 में अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 इस्टेब्लिश की गई थी। इसको नेशनलाइज 1 जनवरी 1949 में किया गया था। इसमें हम्म। पांच जो हैं वो गवर्नर्स, 1+, जिसमें वन गवर्नर ऑफ बैंक होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। और सर हम्म। 21 नन, आई एम मिस पॉइंटिंग, 21 और 20 अप्रोक्स नन अदर मेंबर होते हैं, जो अदर अदर सेक्टर से होते हैं, जिनको डिफरेंस तरह सेक्टर की नॉलेज होती है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कोई सोशल वर्कर होते हैं, कोई डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेटेड होते हैं। और मेनली आरबीआई का काम ये होता है कि हमारे मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर सके, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ज्यादा वेरी ना करे, और फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसको, रेट्स जो होते हैं उसको कंट्रोल कर सके, ताकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा कम ना हो जाए। तो जी ये सब सही बोला, बट बीच में कुछ स्टोरी सब बता दिया। ये सब जरूरत नहीं जी। रिजर्व बैंक क्या ओके। बता नहीं सकते हो आप, खाली गवर्नर का नाम बोलो। रिजर्व बैंक, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, note यस issuing सर। authority or controller of foreign exchange and monetary policy authority, ऐसा करके बोल के चुपचाप बैठो। ओके सर। बाद में वो लोग पूछेगा ओ, इसका बारे में बोलो। आपने तो कुछ गप्पा बार, यू टोल्ड सो मेनी थिंग्स। बाद में और एक बार सुन के देखो, बीच में जो कुछ ओके। बोला वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके सर। ओके। वेरी सॉरी गुड। सर। या, वेरी नाइस। अच्छा जी, किस बैंक में अकाउंट है आपका? मेरा सर एसबीआई में है। वेरी गुड। अच्छा जी, डोमेस्टिकली सिस्टमिक इम्पोर्टेंट कौन सा बैंक्स है उसका? व्हाट इज इट, व्हाई इट इज दे आर कॉल्ड डोमेस्टिकली सिस्टमिक इम्पोर्टेंट बैंक्स? सर, 3 हमारे बैंक जो हैं वो डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट बोले गए हैं। एक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एसबीआई। और हम्म। इसका सर रीजन ये रहता है कि अगर इनके पास जो है वो हमारे जीडीपी का 2% से ज्यादा जो अमाउंट है वो होता है, इसीलिए इनको डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट बैंक कहा जाता है। ए पॉइंट भी को और एक बता दो। कुछ उसको जैसे, फेलियर होगा तो वो तो वो इकोनॉमी का बहुत हाँ, अफेक्ट होगा। इकोनो इफेक्ट इसी होगा, वजह ये से, सर। इसी वजह से तो ये दे आर सर, कॉल्ड। कौन सा बैंक है, 3 बैंक? डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड एसबीआई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
गुड, यू टोल्ड वेरी नाइसली। अच्छा जी। अभी फेडरल रिजर्व रेट, इसका बारे में सुना आपने? फेडरल यस सर। रिजर्व, वो क्या चीज है इस जी? सर ये अमेरिका का इंटरेस्ट रेट है, जो कि अभी जितना मुझे याद है ये अक्टूबर 2007 के मुकाबले सबसे हाईएस्ट अभी तक गया है। जो कि अमेरिकन इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करता है कि वहां पे अभी भी काफी ज्यादा इन्फ्लेशन और रिसेशन रिसेशन नहीं, इन्फ्लेशन। है। इन्फ्लेशन या इसलिए 4.75% इंटरेस्ट करा दिया, ये तो हाईएस्ट रेट है। और हाईएस्ट इसका रेट है। इसका इम्पैक्ट क्या है? वो उसका इम्पैक्ट हमारा इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट होगा? सर ये इसका मुझे नहीं पता। इसका इम्पैक्ट कैसे होगा? अभी देखिए, कल टुमारो रिजर्व बैंक ने अपना रेट यस को सर। बढ़ाएगा, अपना रेपो रेट को ओके। बढ़ाएगा। अभी 6.25 है, अभी सिक्स यस पॉइंट सर। फाइव जीरो बढ़ाएगा। जब ये रिजर्व बैंक बढ़ाएगा, वो तो बैंक का तो इंटरेस्ट रेट, वो भी अपना लोन बढ़ेगा। का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अपना लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से तो कस्टमर को लोन पब्लिक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यस और कस्टमर थोड़ा कम लोन लेगा। कम लोन लेगा। लेने से मनी सर्कुलेशन मनी कम होगा। सप्लाई मनी कम होगा। सप्लाई कम होने से आपको इन्फ्लेशन कम होने का उम्मीद है। है। यस। So, और इसका अलावा इसका इम्पैक्ट ये भी है दैट अभी देखिए, ये रेट बढ़ाना के वजह से अमेरिका में स्टॉक मार्केट रेट अच्छा हो गया और इम्प्रूव हो रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, अमेरिका से हमारा कंट्री में जो आके पैसा जमा देते थे, वो लोग अपनी अभी विड्रॉ करना शुरू कर दिया, अभी और कम करना शुरू कर दिया। समझ गया? यस। यस सर। दिस यस इज सर। दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पैक्ट ऑफ दिस। करेक्ट। अभी देखिए, इसको एग्रीकल्चर का बारे में यहाँ पर एक चीज है, इसको ये पढ़ लीजिए। आई विल शेयर दिस विथ यू ओके सर। ऑन द स्क्रीन। अभी इसको पढ़ो जी। द थ्री मोस्ट नोटेबल इनिशिएटिव envisaged, यस एक सर। मिनट, हम इसको आई एम गिविंग इट इन अवर टेलीग्राम पेज, so that other candidates can also make use of it in case they want. तो दे थ्री दिया हमने, मोस्ट दे दिया हमने दे दिया इसको। ये Okay. पढ़ो ये पढ़ो जी। नो, वेर आर वी नाउ? Three most notable initiatives envisaged in the budget are the setting up an agriculture accelerator fund, creation of an all-inclusive digital infrastructure for farming-related information and services, and expansion of decentralized warehousing capacity for agriculture produce. The Yes, other the other significant move. significant move include incentive for producing good quality seeding material for high value horticulture crops, promoting extra long staple cotton cultivation, revamping grassroots level rural institutions like primary cooperative societies and self-help groups. Beside, it has hiked the target of institutional agriculture credit disbursement of 20 trillion with focus on dairy एंड फिशरीज, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, and लास्ट fishing. पॉइंट। Yeah. ठीक है। Dairy गुड, and fishery, yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। अच्छा जी, हमको ये बता दो, प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या सेक्टर आता है? आईटी सेक्टर में सर 8 सेक्टर आते हैं, जिसमें से हमारा एमएसएमई, एडुकेशन, उसके हम्म, बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, उसके बाद एक तो अदर्स आते हैं जिसमें छोटे छोटे सेक्टर्स आ जाते हैं। और सर चार चार मेरे को सर और याद नहीं आ रही, मैंने पढ़ा था। आपने क्या क्या बोला? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग, एक्सपोर्ट, renewable energy, infrastructure, MSME, and small loan others, that is small यस SHG सर। and others। ठीक है। ओके सर, मैं ये अच्छे से एक बार याद कर लूँ। इसका SHG का बारे में जानते हैं आप? सेल्फ हेल्प ग्रुप सर। हाँ, आपका विलेज में होता है? यस सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप सर, इसमें सर नंबर ऑफ कुछ वुमेन्स होती हैं जो एक ग्रुप बनाती हैं। मोस्टली इट इज फ्रॉम 6 to 10 और मे बी मोर देन, बट 10 to मैक्सिमम 10 ये टेन 10 टू to ट्वेंटी 15, 10 to 15 और 20 20 बता दीजिए। करेक्ट।
बोलिए। 20 सर। इसमें हम्म, सर जो वुमेन होती है वो, हाँ, एक टाइप से हम कह सकते हैं कि ये पैसा इकट्ठा करती हैं, और छोटे छोटे जो वर्क्स होते हैं, जो एक तरीके से बहुत मिनिमम इंटरप्रेन्योरशिप में ये पैसा यूज करती हैं। इतना ही मुझे थोड़ा पता है। थोड़ा एग्जाम्पल बोलना है। मोमबत्ती मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग और गोट यस रियरिंग सर। और मैट यस सर। मेकिंग। आपको जानना होगा, आपको विलेज में लोग क्या करता है, उसपे से बताने से बढ़िया होगा। ओके सर। वेरी गुड। एंड ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग का मिला है, बांग्लादेश से आया है। बांग्लादेश में what is that man's name? I have forgotten. He has been given Nobel Prize also. Okay. ओके सर। One minute. So I used to remember always. I don't know why I'm forgetting. Bangladesh Microfinance Nobel Prize. If I put like that, it will come. Yeah. Muhammad Yunus. मोहम्मद यूनुस। Muhammad Yunus from Bangladesh. He was given Nobel Prize for bringing this concept known as microcredit. पहले तो एसएमपी स्मॉल स्मॉल लोन बैंक्स नहीं देते थे, अभी ज्यादा नहीं दे। अभी तो। एसएमपी कर दिया। और दिस स्कीम इज डूइंग वेरी वेल, वेरी गुड। अभी यस। टर्की के बारे में कुछ न्यूज आया, उसके बारे में बोलिए। व्हाट इज टर्की न्यूज? सर, टर्की में अभी अर्थक्वेक आया है। इट इज 7.8 मैग्नीट्यूड अप्रॉक्स, जिसमें सर वहाँ पे अभी तक अबव 250 पीपल हैड डाइड एंड मेनी रॉन्ग हैड रॉन्ग इंजर्ड। रॉन्ग 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 5000 प्लस। 5,000 प्लस। 5000 प्लस हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बात है, उसका प्रेसिडेंट कौन है? टर्की का मैंने सर अभी ये प्रेसिडेंट पॉइंट। प्रेसिडेंट एर्डोगान। एर्डोगान, ERDOGAN। अभी उन्होंने इमरजेंसी डाल दिया 3 मंथ्स के लिए अर्थक्वेक अफेक्टेड रीजन्स में। और आपको ये एसएमपी क्वेश्चंस भी आएगा। टर्की का कैपिटल क्या है? टर्की का कैपिटल अंकारा। अंतारा। यस। एंड टर्की का प्रीवियस कैपिटल है इस्तांबुल। यस सर, टर्की का पहले, कैपिटल अभी नहीं। 2020 चेंज किया सर। 1920 यस सर। 1923 से चेंज हो गया। हम्म। दैट इज अंकारा। एंड अंकारा याद रखने से भी हो जाएगा। अच्छा यस जी। अभी ये बताओ, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसका मतलब क्या है? सर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सर हमारे जो हेल्थ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से है, इसमें सर हु इज हर दैट? हु इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर? हेल्थ मिनिस्टर सर मानसुख मांडविया। मनसुख मंडविया। यस सर, मनसुख मंडविया। आई The एम last question for you. Please tell me, यस सर। who is the chairperson of NCW? नेशनल एनसीडब्ल्यू सर, आई कांट रिकॉल। National Commission for Women. नेशनल, अरे नेशनल सर, आई National रिक Commission for Women. वन National Commission for Women is आर chairperson is Rekha Sharma. रेखा शर्मा। आई एम कंफ्यूजिंग विथ रिचा एंड रेखा। Rekha I Sharma. just because sir, recently in Delhi she had launched a scheme for children. I had remember Bharat Bal Bharat लास्ट Forum. क्वेश्चन फॉर Yes, यू। ये Bal वर्ड आपने, ये वर्ड आपने सुना है? BARD, बॉर्ड। yeah, RD Bard. No sir. इट्स एन आर्टिफिशियल चैट बॉट, बॉर्ड। विच कंपनी हैज Okay. इंट्रोड्यूस दिस? इट इज गूगल। गूगल हैज इंट्रोड्यूस टुडे, आज का न्यूज है। गूगल हैज Okay. इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल चैट बॉट बॉर्ड टू compete with Oh, माइक्रोसॉफ्ट चैट जीबीटी। अभी देखिए, चैट जीबीटी में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। yes sir. की गूगल वजह की से कंपनी है। yes sir. मैंने गूगल ये का ओपन गूगल कंपनी को भी प्रॉब्लम हो गया। बहुत सा लोग का डिस्चार्ज कर दिया। ये सब वेरी बैड थिंग्स। भगवान ने क्या यस ऐसा सर। करता है? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपने अच्छे थैंक से किया है। एक बार ठहरो, हम आपको थोड़ा यू। सिखाएगा, क्या क्या दिखाएगा।
इधर देखिए, ये हम आपको ये वाला दिया है, दिस इज व्हाट आई हैव गिवन यू। आपको, वेयर सॉरी, सर? आपको देखने नहीं पाते हैं, सॉरी, अभी देखेंगे आप। दिस इज व्हाट आई हैव गिवन यू। यस सर। इसमें से आपको क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट पढ़ना है, अभी तो समय बहुत कम है, इसलिए ओके सर। आपने ये वाला अभी नया नया हमने डाला है, ये तो आपने देखा होगा, यस अपरिचित सर। एग्जाम वॉरियर्स, देखा है? यस सर, यस सर, सुना है टेलीग्राम पे। इसको पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। इसमें क्या बढ़िया है, सब बैंक का एड्रेस है, सब बैंक का लोगो, चेयरमैन का नाम है, चेयरमैन, एमडी। टैग लाइन सब कुछ दिया है, इसको पढ़ लो जी। ओके सर। देन यहाँ पर आपने तो बहुत अच्छा से प्रिपेयर कर दिया बजट का बारे में, इसको भी ब्रीफली पढ़ने के लिए बजट का वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से क्या बोला वो इधर दिया हुआ है, ठीक है? फाइनेंशियल सेक्टर अच्छे हाँ, से, यस सर। इसका बाद में आपको इकोनॉमिक सर्वे किधर है? इकोनॉमिक सर्वे ये वाला भी है, इसको समय होने से आप पढ़ लीजिए, तो बहुत लंबा यस बात सर। है, इसको समय होने से ये ओके। भी पढ़ लीजिए। देन इसका अलावा आई एम वेरी कीन यू मस्ट गो थ्रू दिस बुक, बैंकर्स अड्डा बैंकिंग, बहुत अच्छा बुक है, खाली 10 पेजेस है, इसको पूरा पढ़ लो। आपको स्ट्रेंथ का ओके। बारे में, वीकनेस का बारे में कैसे बोलेगा, ये सब पढ़ना है, ठीक है? ओके सर। ओके सर। और ओके। और क्या बोलेगा, एक जनरल इकोनॉमिक्स यहाँ पर मिलता है आपको, गवर्नमेंट स्कीम्स इधर मिलता है, ओके? गवर्नमेंट स्कीम, यस सर, आई विल कंप्लीट ऑल्सो। ये वो तो बहुत गवर्नमेंट जरूरी है सर। गवर्नमेंट स्कीम्स है, और हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हेडक्वार्टर्स ऑफ ओके सर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दिया है, और कंट्रीज करेंसीज वगैरह भी होगा, कंट्रीज करेंसीज वगैरह, कैपिटल कंट्रीज करेंसीज, ये वगैरह भी जनरल नॉलेज, ये भी मिलेगा आपको, ये भी देख सकते हैं। इसका बस ओके और सर। कुछ बहुत कुछ है, और सजेस्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस, कैसे में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये तो इधर दिया है, इसको भी देख लीजिए। जी। हम्म। ओके सर। और क्या ओके। बोलेगा, जस्ट अ मिनट, या बस, और अच्छा से अभी पीएसपी वो इंटरव्यू प्रीवियस क्वेश्चंस क्या है, ये सब दिया है, ये तो आप जानते हैं, फिर भी देख लीजिए। ये सर। ओके सर। Sorry, Okay. I'm ओके having सर। trouble connecting to the internet. ओके सर। It looks like there is a. Yeah, ओके सर। thank you. Thank you. थैंक यू सर। थैंक Thank you so much. Best wishes. Bye. यू। बाय।